So in the last class, we have talked about how we can convert an ER diagram into a set of tables. So some portion we have completed. Now there was one portion that have been remaining. That is how we can convert a relationship, that is identifying relationship, into a table. Okay, so that means we want to discuss the matter associated with weak entity set. Okay, so previously we have discussed an example. You might have remember, we have entity set loan. Okay, then it was having, let's say, attributes loan number, then amount and branch. Okay, and we have entity set that is payment, which is identified by discriminator, let's say payment ID, then payment date, and let's say amount. And there was a relationship between both of these, and this relationship is represented by double diamond because your payment was a weak entity set. So let's call it loan payment. Okay, and the participation of this relationship was total, and this was the discriminator. Okay, आपको याद होगा discriminator is represented with the dotted line drawn under that attribute. Okay, and loan number was the primary key. You know that since we cannot identify every payment in the bank with the help of payment ID, so we are dependent on the loan number. Okay, so that's why this relationship is called identifying relationship. Okay, now one thing sometimes you may face, let me clarify you. Sometimes this loan payment might have some attribute associated with it. Then we can easily transfer that attribute to this entity set. For example, date. You can associate the payment date with this relationship. So this date attribute might belong to this relationship, but we can easily transfer this date here in case of identifying relationship. Okay, now let's see how we can convert this kind of ER diagram into relational model, or relation set of tables. So you might have remember that this is a strong entity set. So for strong entity set you will have a table. So let's say we have a table loan with the attributes loan number, this will be the key, then we have amount, and we have branch. Okay, I have taken only 3 attributes. There may be some more attributes associated with this loan entity set. Okay, then usually that we have learned before this class, while in converting an ER diagram into entity set, you create a table for each of the entity set and also for relationship as well. So let's create the table for payment. So if you create a table for payment, you will have the table like that: payment ID. Okay, now one more thing you should remember, that since this attribute or this entity set is a weak entity set, so we will borrow the primary key from the corresponding entity set. So corresponding means जिसके ऊपर ये डिपेंड है पेमेंट. सो लोन पर डिपेंड है. सो आप चाहें तो लोन नंबर को पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स. जनरली इट विल बी बेटर
to write loan number this side. So let me write loan number this side. Loan number, payment ID, sorry, okay, and then date and अमाउंट, है ना. दिस इज द एज पर द कन्वेंशन. और इसमें जो की होगी वो दोनों मिलकर के काम करेंगे की का. सो दिस इज द जॉइंट की. नाउ लेट्स क्रिएट द टेबल फॉर रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप, name of the relationship will be the name of the table. Then there is a convention. When we create a table for relationship, we borrow the primary key from both the sides, okay, from both the entities. So obviously we will have loan number here and key from this side. That means discriminator हम लेंगे यहाँ से payment ID. Now you can observe that this relationship table is just creating redundancy. Whatever we are providing, we will store here, that is already available in this table. So that means this table is redundant. So since the table of identifying relationship is always redundant, we do not create this kind of table in our database. Okay, so only we will have these two tables. Okay, got it? Okay, so you should remember always that we do not create table for identifying relationship, because whatever data will be in the table of this relationship, that is already available here. Okay, so we will not create that table. So you should remember this. This is the this is how we deal with weak entity set and corresponding relationship. Okay, so let's move ahead. Now I am not going to allow anyone. Okay. Okay, now there are certain design issues while you are creating an ER diagram or you are converting an ER diagram to table. You should remember one design issue that you will require or require to tackle, that is sometimes you may be confused that whether this can be taken as entity or it should be considered as attribute. For example, consider this instructor entity set. In case of instructor, an instructor may have phone number. Okay, now in some scenario you can represent the phone number as the attribute of entity instructor. In some scenario you can also represent or there is an alternative that you can represent phone number with an entity set also. Okay, now let's see, if we represent phone number as entity set, then we will have this kind of ER diagram. We have an instructor, ID, name, salary, these are the attributes. Then we have entity set, phone, and the values are phone number and location. Okay, so location means ये कहाँ का number है. Okay, and sometimes अगर mobile number है for example, then you can have mobile number and then operator. Okay, name of the operator or any other attributes. It is prepaid or it is postpaid kind of thing, है ना. So then you when you are having two entities, so you obviously you need to create an relationship between both of them. Okay, so you will create a table of instructor, you will create a table for phone, and you will be able to create a relationship that will connect instructor with his or her phone number. Now let's see what are the differences between these two designs. So it will give you the answer of your solution कि आपको कब when you want to you should use this design and when you should use this design alternative. So there are two choices available for you. One choice is that you can represent your phone number as an attribute of entity. Okay, now with this design you have one limitation.
when you represent an information as an entity's attribute, you will not be able to record some other information as well about that attribute. For example, फ़ोन नंबर को आप अगर इंस्ट्रक्टर का एट्रीब्यूट बना देते हैं, देन यू कैन नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फ़ोन नंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फ़ोन नंबर. आप फ़ोन नंबर में केवल मोबाइल नंबर रिकॉर्ड, एक सिर्फ नंबर रिकॉर्ड कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश और क्लैरिफाई और स्टोर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर दिस फोन नंबर इज ए लैंडलाइन नंबर, प्रीपेड नंबर, पोस्टपेड नंबर, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस नंबर. Okay, no additional information can be recorded about the phone number. But when you represent this the same thing in this way, that means you represent phone number as an entity set, then you can represent additional information regarding this phone number. आप अब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है एट्रीब्यूट्स के तौर पर आप रख सकते हैं. फ़ोन नंबर, लोकेशन, देन ऑपरेटर इंफॉर्मेशन, kind of that, whether it is a prepaid, postpaid, or also type of phone number. So you can provide multiple information or more information regarding phone number. Okay, so now whenever you are doing a modeling, you need to decide or you need to understand that if you want to represent a particular information or data in form of attribute of an entity, then you will not be able to record more information about that data like phone number. Okay, but if you want to, suppose that if you require that we need to record more information about that data or that thing, then you can represent that thing with the help of an entity set. Okay, so अगर आपको फ़ोन नंबर को के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं करनी है, मेक इट एन एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी, करस्पॉन्डिंग एंटिटी. अगर आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, मेक इट एन एंट्री सेट. सो इट्स अप टू यू एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू विल डिसाइड. ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना है तो आप एंटिटी सेट बना दीजिए. सो देयर इज ए डिजाइन चॉइस फॉर अवेलेबल फॉर यू. ओके, एंड यू कैन टेक appropriate, you can choose appropriate option as per your need. Okay, now let me give you one more example. Sometimes you might have this kind of scenario. That means you have, let's say, department. You have department entity set, and you have attributes like department name, then address, building, budget, and sometimes you might require HOD, है ना. So if you want to just record the name of the HOD, you can go with this option. But again, जैसे मैंने कहा कि if you want to record some more information about an HOD of the department, you can make it an entity set like that. So you will have department. I will not repeat the attributes of department. I will just mention the entity set's name. You will have department. Then you can create HOD. So HOD में आपका नाम, HOD का जो भी नाम है, उसके डेजिग्नेशन, qualification, and or any other information if you require, you can record there. And tenure, कब उसने मतलब when he have joined as a HOD of the department and when is his or her tenure is going to over, sorry. And then you can create a relationship like that. So it's up to you. Okay, so it's up to you how you want to model it. अगर आपको हेड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, मेक इट एन एंटिटी सेट. इफ़ यू डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेड, ओनली यू वांट टू रिकॉर्ड द नेम और ID में भी, then you can make it attribute. So this is a design choice that you have, and you have to decide as per the need of your the organization that you are automating. Okay.
Similarly, sometime you will also do this. You may require to make this as a relationship. This choice for relationship also. Sometimes you can create a relationship, or you can represent a relationship as an entity set. The argument will be same. ठीक है. समटाइम्स हम कभी कभी रिलेशनशिप को एंटिटी सेट बनाना चाहते हैं, या तो एंटिटी सेट बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा. ठीक है. लाइक जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाया हुआ है. Okay, registration could have been made as an relationship, simply relationship. ठीक है. सो रिलेशनशिप होता तो सेक्शन देन रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट, बट अगर आपने इसे एंटिटी सेट बना दिया तो आपने दो एडिशनल रिलेशनशिप और क्रिएट कर देंगे, बिकॉज यू आर मार्किंग रजिस्ट्रेशन एज एंटिटी सेट. ओके. सो जब आपको ज़्यादा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, यू कैन मेक ए रिलेशनशिप एज एन एंटिटी सेट. ओके. सो दीज आर द सम डिजाइनर चॉइसेस. समरी जैसे मैंने बताया कि एनरी रिलेशनशिप है, आप उसे एनरी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीपल बाइनरी रिलेशनशिप्स. सो आई विल नॉट गो इनटू द दैट डिटेल. यू विल नाउ लेट्स कम टू द एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम फीचर्स. ओके. So as I told you, Chen created ER diagram. Chen first time published ER diagram in 1976 in his paper. Okay, but later some extension was made. So one extension was the addition of specialization and generalization into your ER diagram. Specialization and generalization. So specialization and generalization both are associated with each other. So we will just discuss the specialization, and generalization is actually the reverse of specialization, or you can say that both are opposite to each other. So if we discuss one, other will be automatically clear to you. And there was one more extension that was made to ER diagram was aggregation. So aggregation you require rarely, and it is also difficult to understand, but I will try to explain you so that you can understand the aggregation. So first let's focus on specialization. Okay, so sometimes what happens, you observe certain entities and you make them entity sets. आपने कुछ entities observe की and you make them entity sets. So let's say you have observed an entity like person. So person is having some attributes. Let's talk about the context of our university. So let's suppose that आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्व किया कि देर आर लॉट ऑफ पर्सन्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी. ओके. नाउ व्हाट यू सी that you can divide these persons into different categories. Okay, like you can have two kind of persons in a university: employee and student. ठीक है. ये जो नोटेशन है इसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव डिवाइडेड दिस पर्सन एंटिटी सेट इनटू टू एंटिटी सेट्स. ओके. सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नाउन एज स्पेशलाइजेशन. सो स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस वेयर वी डिवाइड द एंटिटीज विद इन an entity set into two or more entity sets on the basis of certain differences that those entities possess. Let me repeat again. An specialization is a process where we divide an entity set into two or more lower level entity sets on the basis of differences among the entities within that entity set. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये पर्सन्स हैं, उनमें आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं. कुछ पर्सन्स एम्प्लॉई हैं और कुछ पर्सन क्या है, स्टूडेंट हैं. तो उनमें डिफरेंसेस किस बेस पर आ रहा है, कुछ सम आर डूइंग द सर्विस इन द यूनिवर्सिटी एंड सम आर एक्चुअली स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड ऑल दोज पर्सन्स इनटू टू कैटेगरीज. ओके, एम्प्लॉई एंड स्टूडेंट. Similarly, further what you can also do, you can divide employee into two more categories.
मैं केवल एग्जाम्पल के लिए 2 ले रहा हूँ, आप और चाहें तो डिफरेंट ले सकते हैं. दैट मीन्स एन यूनिवर्सिटी में हैव 2 काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, टीचिंग and non-teaching staff. I am not writing employee, just teaching and non-teaching. ठीक है, you can put, let me again put, अच्छा लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में EMP लिख रहा हूँ, टीचिंग एम्प्लॉई एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉई. ओके. Similarly, if you would like to have, you can divide students into 2 categories. जनरली मैं एक कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ. जनरली जो यूएस में कन्वेंशन होता है वो रिसर्च स्टूडेंट को वो ग्रेजुएट स्टूडेंट बोलते हैं, और बाकी के अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट हैं. या आप ऐसे मान सकते हैं रिसर्च स्कॉलर एंड नॉन रिसर्च स्कॉलर. हम 2 स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं इन एज पर आवर यूनिवर्सिटी सिनारियो. ठीक है. सो आप स्टूडेंट को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो. रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एंड मे बी व्हाट यू कॉल नॉन रिसर्च स्कॉलर्स, वी कैन से दैट. ओके, लेट्स से दोनों 2 ही टाइप के स्टूडेंट हमारे पास हैं. So this is how specialization works. ठीक है. So you can divide an entity set at up to multiple levels. Okay. Then person entity set in this case will be called higher level entity set, higher, and these are the 2 lower level entity set. And further we also have 2 more lower level entity sets. So you can say that this is the highest level entity set, person is the highest level entity set, employees are the lower level entity sets, and teaching employee, non-teaching employee, non-research scholars and research scholars are the lowest level entity sets. Okay. So this kind of division is known as specialization. Now this specialization may be done on 2 bases. One based on certain conditions, or it may be done some this division, ये जो division आपने किया ना, that may be some that may be done on the basis of certain differences in the attributes that are possessed by them, or sometimes this specialization may be random also. For example, suppose in a company, what company does, company have employees, and these employees can be divided into 2 categories: HR staff like that, and other staff, something like that. And ये जो division है, that may not be as per certain criteria, just उन्होंने अपनी choice से division कर दिया. कोई इसके पीछे आर्गूमेंट नहीं था, लॉजिक नहीं था, देयर वाज नो लॉजिक, जस्ट दे डिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस, कि कुछ स्टूडेंट को, कुछ एम्प्लॉइज को HR में डाल दिया और कुछ को अदर स्टाफ की कैटेगरी में रखा. ठीक है. तो मैंने 2 ही कैटेगरी बनाई है. यू कैन एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव मल्टीपल कैटेगरीज, और उसमें एम्प्लॉइज का असाइनमेंट they may have done on the some basis. Sometimes they may do also on the basis of eligibility or the qualification. Okay. So your specialization जो है, specialization in an organization may be done on some certain conditions, or it may be done on just choice based, on the basis of choice. Okay. So this is how specialization works. Now in case of specialization, you should remember that here inheritance automatically comes into the picture. What is the meaning of inheritance? The meaning of inheritance is that whatever attributes are possessed by this entity set will also be possessed by corresponding lower level entity set. So person के पास जो attributes हैं, like say a person is having ID, name or something else, date of birth also. So all these attributes will be possessed by these 2 also, these 2 lower level entity sets also. Okay. Now we do not need to
रिप्रेजेंट दीज एट्रीब्यूट्स हियर इटसेल्फ। हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉय की आईडी भी होगी, नेम होगा, स्टूडेंट की आईडी या नेम होगा। वी विल जस्ट प्रोवाइड डिफरेंशिएशन कि किस कौन कौन से एडिशनल एट्रीब्यूट्स इसके पास हैं। जैसे इसके पास होगी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, ऑल अदर एट्रीब्यूट, वट एवर एट्रीब्यूट्स आर देयर, जो केवल इनके पास हैं। स्टूडेंट के पास जो डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। लेट्स से मे बी एडमिशन डेट, समथिंग लाइक दैट, एडमिशन डेट, प्रोग्राम जिसमें उसने इनरोल किया है, प्रोग्राम नेम आप लिख सकते हैं, और टोटल क्रेडिट्स। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग क्रेडिट्स। ओके, सो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, यू विल राइट देयर, है ना, हियर। लेकिन आईडी और नेम जो ऊपर है ऑलरेडी पर्सन के पास पोजीशन है, उनको यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज when whatever attributes the higher level entity have, all the lower level entity also possess those attributes. Okay, so we do not need to list them while drawing ER diagram. जब ER diagram बना रहे हैं तो अगर हमने कुछ attributes यहाँ मेंशन कर दिए हैं जो कि इन एंटिटीज के पास हैं, यहाँ पर आपने फिगर आउट किए थे, then you also do not need to put those attributes or repeat those attributes here. You just need to write the attributes that are possessed by this one, नॉट बाय दीज वन। तो इन दोनों में जो डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आप मेंशन कर देंगे, बिकॉज देयर इज अ इनहेरिटेंस दैट इज कमिंग इनटू द पिक्चर। इनहेरिटेंस मींस हायर लेवल एट्रीब्यूट एंटिटी सेट्स के सारे फीचर्स लोअर लेवल में अपने आप आ जाते हैं। जैसे मदर पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं चाइल्ड में अपने आप आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से डिराइव की गई है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइजेशन। In case of generalization, actually what happens, generalization is actually the reverse process of specialization. Now sometimes it may be that कि rather than identifying these person entity set, आपने हो सकता है आपको इस थोड़ी देर के लिए, अब इसको भूल जाते हैं हम, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, डिस्कशन से बाहर कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास केवल ये एंटिटी सेट्स थे। नाउ समटाइम्स व्हाट मे बी द केस कि पहले आपने ये दोनों एंटिटी सेट्स फिगर आउट किए एंड देन आपने देखा ऑल हैव समथिंग कॉमन अमॉन्ग देम, सो आपने एक और हायर लेवल एंटिटी सेट बना दिया और जो कॉमन फीचर्स इन दोनों के पास थे वो आपने यहाँ लिख दिया और एक नया एंटिटी सेट बना दिया। सो आइडेंटिफाइड दैट यू हैव एम्प्लॉय। सबसे पहले आपने देखा कि एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, स्टूडेंट एंटिटी सेट है। देन यू सी दैट बोथ आर हैविंग सर्टेन कॉमन फीचर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर आपने एक हायर लेवल एंटिटी सेट बनाया और उसमें उसका नाम लिखा कुछ, एंड देन जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे दोनों के पास वो यहाँ लिस्ट कर दिया और इस तरीके से ड्रॉ कर दिया एक डायग्राम। सो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। ओके, सो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन बोथ आर इनवर्ट टू ईच अदर, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन आउटकम दोनों का सेम आने वाला है। डिफरेंस क्या होता है कि इन केस ऑफ स्पेशलाइजेशन यू आइडेंटिफाई लेट्स से हायर लेवल एंटिटी सेट एंड देन यू ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग divide that entity set into lower level entity sets, है ना। In case of generalization what you do, in case of generalization actually first time you encounter the lower level entity sets and then the basis of the similarity among these lower level entity sets you figure out an higher level entity set. Okay, so both processes just reverse of each other. Okay, so now you could have understood that specialization is a what kind of process? टॉप डाउन, है ना। आप टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं क्रिएट करते हुए हायरार्की। जनरलाइजेशन इसका रिवर्स है, बॉटम टू अप। सो बॉटम अप अप्रोच है जनरलाइजेशन। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर दिस इज जनरलाइजेशन विच इज ए bottom up approach and specialization is top down approach. okay, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का आउटकम सेम होगा। नाउ इट्स अप टू यू, ये जो स्पेशलाइजेशन करते करते कितने लेवल तक आपको जाना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ जनरलाइजेशन हम थोड़ी देर के भूल जाते हैं, जो चीज़ स्पेशलाइजेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट विल ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्पेशलाइजेशन। ओके, नाउ देयर मे बी टू क्लासिफिकेशन। स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप।
पार्शियल, एक डिवीजन तो स्पेशलाइजेशन का ये है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, एंड टोटल। ठीक है, सो ये स्पेशलाइजेशन, इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं आप, पार्शियल एंड टोटल। सो ये होगा पार्शियल, एक कैटेगरी ये है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है स्पेशलाइजेशन का, ओवरलैपिंग, and disjoint. Disjoint is the more prominent term. Disjoint specialization, आप इसे चाहें तो नॉन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट disjoint is more technical term. So let's talk about these kind of specialization and generalization. ठीक है, so first पहले हम बात कर लेते हैं ये वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन, दिस स्पेशलाइजेशन। सो लेट्स से यू हैव एन एंटिटी सेट लाइक दैट, वही पर्सन वाले पर ही आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग ए ब्लैक बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, सॉरी। देन सपोज दैट आपने पर्सनस को दो एंटिटी सेट्स में डिवाइड किया, यू हैव एम्प्लॉय and student, है ना। now let me put this diagram there. Now what may happen, in this scenario you are dividing this entity set person into two categories only, employee and student. Now it may be the case that there may be certain persons or that are not part of any of this, ना तो वो एम्प्लॉई हैं ना स्टूडेंट हैं, ऐसा हो सकता है। थिंक ऑफ अबाउट यूनिवर्सिटी सिनारियो एंड टेल मी क्या हु आर सच पर्सन्स। They are neither employee of university, neither student, but they are in the university and or they are associated with the university. Yes, security staff, sometimes gardening staff, or any other kind of staff, so that are outsourced, or they are coming from some other third party agency, है ना। एंड यूनिवर्सिटी माइट हैव सप्लायर्स, ऑल दैट सप्लायर्स, they are supplying chemicals and they are supplying stationery items, they are supplying lab equipments, all that, है ना। so they are also persons, yes or no, but we are not covering there. So that means union of these two sets is not equal to this set. So that means you can see that जो मैंने persons की बात की, all are part of this entity set, but they are not part in neither here, they are not here, and that means ये जो आपने लोअर लेवल एंटिटी सेट्स बनाए हैं इनका यूनियन इसके बराबर नहीं है। दैट मीन्स पर्सन, सॉरी ऐसे करते हैं, एम्प्लॉय, ओके, ये सब सेट होते हैं, तो मैं यूनियन लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय यूनियन स्टूडेंट आर प्रॉपर सबसेट ऑफ पर्सन, और प्रॉपर सबसेट का मतलब आप जानते हैं, दैट मीन्स ये जो दोनों सेट्स हैं इनका यूनियन से जो सेट बना वो इस सेट से स्मॉल आ रहा है, नॉट इक्वल, प्रॉपर सबसेट है। दैट मीन्स देर आर persons that are not part in that are not belonging to this set. Okay, so this kind of specialization is known as this one, partial.
एंड इन केस ऑफ टोटल व्हाट विल हैपन, इन दोनों का यूनियन एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि पार्टिसिपेशन टोटल है। दैट मीन्स ईच अपर लेवल एंटिटी इज आइदर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लोअर लेवल एंटिटी। ओके, सो ये है केस किसका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, अगर ऐसा सिनारियो है देन दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज योर पार्शियल वन। ठीक है, you can call such specialization as partial specialization. Okay, when you will call it total, otherwise इस केस में कि एम्प्लॉई, जैसे एम्प्लॉय वाला तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कम हियर आपने स्टूडेंट को दो कैटेगरी में बांटा है, दैट मीन्स ओनली यूनिवर्सिटी इज हैविंग कैटेगरी ऑफ आइदर दिस कैटेगरी और दिस वन। तो जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है या तो वो रिसर्च स्कॉलर हैं या नॉन रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो दैट मीन्स यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इज इक्वल टू दिस सेट। सो दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड टोटल। और आप देख रहे हैं टोटल को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। जनरली हम टोटल को यहाँ टोटल लिखते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन फाइनल नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आपका स्पेशलाइजेशन टोटल है, दैट मीन्स इन दोनों का यूनियन इसके बराबर है, तो आप यहाँ टोटल लिख देते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके टोटल लिख देते हैं। और सम नोटेशन में आप यहाँ पर डबल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और टोटल लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टोटल। सो टोटल के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसी को लिख दें अगर, तो मान लीजिए हमारा किसी एजम्पशन में ऐसा होता कि एम्प्लॉय यूनियन स्टूडेंट, मतलब इंस्टीट्यूट में कोई भी पर्सन नहीं है जो आउटसोर्स्ड हो, और जनरली इक्वल होते हैं ना सेट्स में, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं पर्सन, देन दिस इज कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन। Okay, so this is one categorization. Now let's talk about that overlapping and overlapping and disjoint specialization. Now let's suppose that you having entry set like that, एम्प्लॉय। ठीक है, मे बी लेट्स से एक तो है रेगुलर और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, या ऐसे लिखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। यूनिवर्सिटी में दो तरीके के एम्प्लॉय हैं, टीचिंग एम्प्लॉय, तो मैं शॉर्ट में EMP लिख रहा हूँ, एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। इसके अलावा और कोई एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय की दो ही कैटेगरी यूनिवर्सिटी में, नॉन टीचिंग, जो टीचिंग नहीं करते हैं वो सब नॉन टीचिंग एम्प्लॉय में आ गए। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि कोई नाउ इन दोनों में आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इन दिस केस टीचिंग एम्प्लॉय ये एक सेट है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन नॉन टीचिंग, इक्वल टू 5। तो हम क्या बोलेंगे इसे, दिस इज डिसजॉइंट एग्जाम्पल, देन it is disjoint specialization. Okay, this is disjoint specialization. Now there may be scenario यहाँ पर क्या हो कि ये जो है इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन भी हो, फाई ना हो, तो हम कहेंगे कि दिस इज ओवरलैपिंग। दैट मीन्स दोनों यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं पर्सन। सो
लेट्स से सपोज यू हैव ए सिनेरियो लाइक दैट, एक यूनिवर्सिटी में दो तरीके के पर्सन है केवल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आउटसोर्स वाले पर्सन को हम भूल जाते हैं। यू हैव एम्प्लॉय, you have students. Now what may be the case कि there may be certain persons जो एम्प्लॉय भी है और स्टूडेंट भी है यूनिवर्सिटी में। वो कब पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी परमिट्स देयर एम्प्लॉयज टू डू हायर क्वालिफिकेशन विद इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। सो नाउ आपके जो पर्सन्स हैं, एक पर्सन दोनों सेट्स में बिलोंग कर सकता है। देयर मे बी मल्टीपल पर्सन्स ऑफ सच कैटेगरी दैट वो एम्प्लॉयज भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ फॉर गेटिंग हायर क्वालिफिकेशन। ओके, सो ऐसे तरीके के स्पेशलाइजेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग। और इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉय इंटरसेक्शन स्टूडेंट, या स्टूडेंट एस नहीं लगाना है, स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू 5। देन हम कहेंगे इसको कि ये एग्जाम्पल है आपका कैसा, ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन। क्लियर? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, let's talk about let's see now let's talk about how we can represent these specialization if you have created any into tables। ठीक है, आप इनको टेबल्स के केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय का, ठीक है। सो पर्सन एंटिटी सेट जो था उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे? आईडी, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। तो आपने पर्सन एंटिटी सेट ड्रॉ किया, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए थे। देन आपने पर्सन को 2 कैटेगरी में बांट दिया, स्टूडेंट और एम्प्लॉय में। ओके, एंड आईडी और टोटल क्रेडिट स्टूडेंट के ले लिया आपने, क्योंकि आईडी को ध्यान रखना है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल टोटल क्रेडिट आप ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इज ऑल्सो पर्सन, तो आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली एम्प्लॉय के पास एक चीज़ लिखी होगी, एक ही एट्रीब्यूट मेंशन होगा, सैलरी। आईडी दोनों के पास है एक्चुअली, ये चारों एट्रीब्यूट्स जो ना दोनों के पास अवेलेबल हैं, नेम, स्ट्रीट, सिटी। ओके, सो सपोज दैट दिस इज योर स्पेशलाइजेशन दैट यू आर हैविंग, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, सो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सिनेरियो हमारे पास, वी हैव एन एंटिटी सेट पर्सन with attributes ID, name, street and city, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, एक एंटिटी सेट है हमारे पास एम्प्लॉय, एक ही एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सैलरी। मल्टीपल हो सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है इनको कंसिडर करना। यहाँ पर स्टूडेंट, क्रेडिट, ठीक है। अब ये पार्शियल है, क्या है क्या नहीं है, वो हम बाद में बात कर लेंगे इस पर। समटाइम्स जो ना कुछ नोटेशन में ऐसे वाला भी एरो बनाया जाता है, या एज ए लिख देते हैं यहाँ पर, एज ए आई एस ए, ठीक है, तो वो सेम नोटेशन है। दिस इज हाउ यू आर हैविंग द थिंग्स। नाउ जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास देखिए कौन कौन से तरीके हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है, लेट मी टेल यू, हम दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। 2 तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो टेबल्स में। पहला है कि आप एक पर्सन नाम से टेबल बनाइए, कि इसमें आप लिखिए आईडी, नेम, स्ट्रीट
एंड सिटी। ठीक है, चारों एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब एक टेबल बनाइए एम्प्लॉय नाम से, इसके लिए लोअर लेवल के लिए। ठीक है, और इसमें आपको ये एट्रीब्यूट कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आईडी की है तो केवल की कॉमन ले लेना है दोनों जगह पे। ठीक है, सो यहाँ पे आईडी 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 एंड सैलरी, ये आपके बन गई एम्प्लॉय टेबल। एंड सिमिलरली यू हैव स्टूडेंट टेबल एंड you have id here, that will be key and credit। ठीक है, क्रेडिट्स लिखते हैं, क्रेडिट्स। दिस इज वन वे। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। दो डिजाइन आपके पास पॉसिबल है रिलेशनल मॉडल में कन्वर्जन का। एक तरीका आपके पास ये है कि आप हायर लेवल एंटिटी सेट के लिए टेबल नहीं बनाइए, आप सिर्फ क्या करिए, ये काम करिए, एम्प्लॉय टेबल बनाइए जिसमें लिखिए आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी एंड जो यूनिक फीचर था इसका वो सैलरी। टेबल 1। और दूसरा स्टूडेंट नाम से टेबल बनाइए, यहाँ पे लीजिए आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी, यहाँ सैलरी की जगह पर क्रेडिट्स आ जाएगा। सो दीज आर द टू डिजाइन ऑप्शंस और कन्वर्जन ऑप्शंस यू हैव। नाउ कब कौन सा यूज करना है वो या कम किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या ड्रॉबैक है, लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कब कौन सा डिजाइन यूज करना है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डिजाइन। नाउ ये जो डिजाइन है इसमें क्या है कि आपने पर्सन नाम से एक टेबल बना दी, एम्प्लॉय आईडी एंड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यू हैव क्रिएटेड लाइक दैट। नाउ इसमें ये जो डिजाइन है इसका एडवांटेज क्या है कि ये आईडी जो की है ना, ये यहाँ पर फॉरेन की आप बना सकते हो, बिकॉज आपको मालूम है एवरी एम्प्लॉय इज ए पर्सन, एवरी स्टूडेंट इज ऑल्सो पर्सन। सो एवरी जो भी एम्प्लॉय है या जो पर्सन का रिकॉर्ड आ रहा है वो यहाँ भी अवेलेबल है। सो हर एम्प्लॉय के बारे में, जैसे मान लो आपको ये एम्प्लॉय की ये आईडी है एम्प्लॉय की, और आपको किसी एक एम्प्लॉय की लेट्स से आईडी 101 है और उसका नेम, स्टेट, सिटी पता करना है, तो दोनों का नेचुरल ज्वाइन कर लीजिए। नाउ यहाँ पर आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसमें कोई ऐसी आईडी इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जो पर्सन टेबल में नहीं है, तो यहाँ वो इंसर्शन अलाउड नहीं होगा। सो आपके लिए एक सेफ्टी फीचर क्रिएट हो गया, एब्रप्ट चेंजेस आपके डेटाबेस में नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसे डिक्शनरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द टेबल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पर्सन्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो यू विल नॉट, आप फॉरेन की जब कंस्ट्रेंट लगा देंगे सो कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में नहीं आएगी। सिमिलर आर्गूमेंट यू कैन ऑल्सो गिव फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। सो दैट मीन्स यू कैन इम्पोज फॉरेन की कंस्ट्रेंट हियर दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन द करेक्टनेस। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, आप देख रहे हैं दोनों जगह पर एक पर्सन के सारे रिकॉर्ड तो आ ही रहे हैं, सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ हैं, सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड यहाँ है। दैट मीन्स उनकी आईडी अननेसरी आप यहाँ रिपीट कर रहे हो। और जब भी आपको किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है एम्प्लॉय आईडी की, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये दो ड्रॉबैक हैं, एक तो आईडी का रिपीटेशन हो रहा है, दूसरा व्हेन यू नीड टू कंबाइन द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू डू द ज्वाइन। एडवांटेज क्या मिल रहा है, करेक्टनेस के लिए आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट यहाँ पर आसानी से इम्पोज कर सकते हो। नाउ ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन आपके लिए एक और एडवांटेज दे रहा है। वो क्या है कि नाउ देयर मे बी सर्टेन पर्सन्स जो पर्सन सेट में है लेकिन यहाँ एम्प्लॉय और स्टूडेंट ना हो। दैट मीन्स ये जो स्पेशलाइजेशन है ये एक तरीके से पार्शियल टाइप का है ना। मतलब देयर आर पर्सन्स जो एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जो ना तो एम्प्लॉय है ना स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ कंसिडर हो जाएंगे क्योंकि उनका डेटा यहाँ है। ठीक है, तो दोज पर्सन्स कैन बी कंसिडर्ड। तो आपको याद रखना है जब आपका स्पेशलाइजेशन ओब्वियसली ऐसा हो जहाँ पे इन दोनों का यूनियन इसके बराबर ना हो, तो आपको ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आप उसको डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि जो पर्सन्स जो ना तो एम्प्लॉय है ना स्टूडेंट है उनका डेटा इस टेबल में आ जाएगा, पर्सन टेबल में। ओके, लेकिन मान लीजिए अब इसी सिनारियो में ये आप डिज़ाइन फॉलो करते तो आपको मालूम है कि आपने पर्सन टेबल बनाई ही नहीं है,
तो केवल आप दो ही टाइप के पर्सनस का डेटा रख पाओगे, स्टूडेंट का और ओनली एम्प्लॉय का। लेकिन ऐसे जो आउटसोर्स पर्सनस हैं उनका डेटा इस डेटाबेस में आपके नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ये जो स्पेशलाइजेशन है आपका ये पार्शियल हो, टोटल ना हो, तो आप नहीं कर सकते। टोटल ये काम करेगा उस केस में, लेकिन ये केवल तब यूज कर सकते हो आप जब ये स्पेशलाइजेशन टोटल हो। ठीक है। नाउ अगर ये स्पेशलाइजेशन ओवरलैपिंग भी है तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ पर्सन एम्प्लॉय भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, देन दिस डिजाइन विल वर्क। बट इन दिस केस यू विल हैव एडिशनल रिडंडेंसी। नाउ इट मे बी द केस दैट देर आर एम्प्लॉयज जो स्टूडेंट भी हैं, तो उनका डेटा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, उनका नेम स्टेट सिटी आईडी ये अननेसेसरीली रिपीट होगी। सो दैट मीन्स यू विल हैव लॉट ऑफ रिडंडेंसी। सो ये जो डिज़ाइन है आपको केवल कब इस्तेमाल करना है, जब इन दोनों सेट्स का जो है यूनियन इसके बराबर हो, तभी आप ये डिज़ाइन फॉलो करेंगे। और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मीन्स ये इनके बीच का इंटरसेक्शन 5 हो और इन दोनों का यूनियन इसके बराबर हो, तो ये डिज़ाइन ठीक है। हालांकि इसमें अब आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं लगा पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। सो जो करेक्टनेस कंस्ट्रेंट है वो आप नहीं लगा पाएंगे। सो यू नीड टू कंसिडर विच डिजाइन यू नीड टू फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोज एंड कॉन्स। जनरली दिस डिजाइन इज मोर बेटर, इसमें थोड़ी सी रिडंडेंसी है बट दिस डिजाइन लुक्स मोर बेटर, बट समटाइम्स इट मे बी हैविंग सम रिडंडेंसी इन पर्टिकुलर केस, लाइक इन दोनों का यूनियन इसके बराबर हो और ये दोनों सेट्स जो है इसका इंटरसेक्शन 5 हो, तो ये डिज़ाइन वर्क कर सकता है। लेकिन इसमें स्टिल ये प्रॉब्लम है कि आप कभी भी इसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं लगा पाएंगे। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का मतलब ये जो आईडीज एंटर कर रहे हो ना आप, ये आप क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे किसी और टेबल में, जो कि यहाँ कर सकते थे आप। ठीक है। सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट यहाँ नहीं लगेगा, अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट दिस डिज़ाइन इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। इट इज़ जस्ट बेनिफिशियल व्हेन these टू सेट्स का जो यूनियन है इसके बराबर है और दे दोनों सेट्स डिसजॉइंट हो। दैट मीन्स आपका स्पेशलाइजेशन कैसा हो, टोटल एंड डिसजॉइंट हो। टोटल एंड डिसजॉइंट हो, टोटल प्लस डिसजॉइंट हो, तो आप ये डिज़ाइन फॉलो करेंगे, अदरवाइज दिस डिज़ाइन इज बेटर। ओके। सो दिस इज स्पेशलाइजेशन। सो चलिए आज यहीं क्लोज कर देते हैं। नाउ आई थिंक अब आप स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे वो कर पाएंगे, एंड आई विल शेयर सम मोर एग्जाम्पल्स विद यू। एक और टॉपिक बचा हुआ है, जनरलाइजेशन। सो वी विल डिस्कस दैट, वी विल कंप्लीट दैट पोर्शन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। और एग्रीगेशन ही करना है, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम्पल्स दैट आई विल शेयर विद यू। कुछ एग्जाम्पल्स आप अटेम्प्ट करिएगा और नहीं कर पाएंगे देन वी विल डिस्कस। नाउ आपको जितना रिक्वायर्ड है वो सारा, जितना थ्योरी हमने पढ़ लिया है उससे सारे ही डायग्राम आप बना पाएंगे, क्योंकि एग्रीगेशन आपको बहुत रेयरली आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्रीगेशन यूजुअली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट सम सिनारियो, रेयर सिनारियो में आपको ज़रूरत पड़ सकती है एग्रीगेशन की। सो अभी मैं जो एग्जाम्पल्स आपको शेयर करूँगा उसमें एग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं है, ओनली स्पेशलाइजेशन से काम हो जाएगा। ठीक है।